नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 3 एंड सब टॉपिक इज कैटेलिसिस। सो फ्रेंड्स, you know about catalyst. So first term is your catalyst. तो कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस, a substance that increases the rate of reaction without undergoing any chemical change is called catalyst, and the phenomena is called catalysis, and the phenomena is called catalysis. ठीक है बच्चों, सो यू नो द मीनिंग ऑफ कैटलिस्ट एंड कैटेलिसिस। आप देखते होंगे कि इन डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम परक्लोरेट KClO3 and decomposition is there KCl plus O2, right? Now you can balance it to this is 2 and 3 O2 gas. But the rate is very slow if you decompose KClO3 potassium perchlorate. Rate is very slow. Rate of evolution of oxygen gas is very slow. But in presence of MnO2, the rate of reaction increases. In this case, rate of decomposition increases, and here MnO2 acts as catalyst. Right, friend? Now question comes, the types of catalyst. Types of catalyst. So there are two types of catalyst. First one is heterogeneous. Heterogeneous catalyst, and second, of course, homogeneous catalyst. Right, friend? First one is heterogeneous catalyst. In this type of catalyst, you can say in catalytic process, when a reactant and catalyst are not in same phase, that means रिएक्टेंट का जो फेज होगा और कैटलिस्ट का जो फेज होगा वो अलग अलग होगा। हो सकता है रिएक्टेंट गैस हो लेकिन कैटलिस्ट सॉलिड हो सकता है, तो दैट कम्स अंडर हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। इट इज क्लियर फ्रॉम सम एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इज, फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 into SO3 in presence of
platinum catalyst. So many examples are there. ASO2, it's a platinum, and ASO3, this is oxidation is there. Now here catalyst, you see platinum is solid and this is your gas. So reactant and this is catalyst. इनका फेज अलग अलग है, ये गैसियस फेज में है रिएक्टेंट और ये क्या है भाई, सॉलिड फेज में. तो सच टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट. हेट्रो मीन्स अलग अलग, डिफरेंट. एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेवर प्रोसेस, यू नो, N2 plus 3H2 2NH3, राइट. इसमें Fe एक्ट्स एज कैटलिस्ट और मोलिबिडियम भी डालते हैं, दैट एक्ट्स एज प्रमोटर. इसके बाद आते हैं उसमें. इट्स अ गैस. नाइट्रोजन इज गैस, हाइड्रोजन इज गैस, दिस इज योर solid. So here this catalyst is called heterogeneous catalyst. So many examples related to heterogeneous catalyst are present. Now you search it out. Now second is homogeneous catalyst. होमो मीन्स एक जैसे. सो सिंपल डेफिनेशन इज देयर. इन कैटालिटिक प्रोसेस व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज, राइट. यानी रिएक्टेंट का फेज भी सेम होगा और कैटलिस्ट का भी फेज सेम होगा. ठीक है दोस्तों, कुछ एग्जांपल देखते हैं. एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है एस्ट्रिफिकेशन और हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, दोनों ले सकते हो इसमें. इसमें क्या होता है भाई, C2H5OH एल्कोहल प्लस CH3COH एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड and it forms CH3COOC2H5 ester plus water. So now you see this is liquid phase, this one also liquid and mineral acid is also liquid. So here catalyst is called homogeneous catalyst. फेज जो रिएक्टेंट का है, रिएक्टेंट का फेज और कैटलिस्ट का फेज ये सेम फेज है. और भी एग्जांपल हम रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसका उल्टा भी रख सकते हो, एक्चुअली इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है दोस्तों. नंबर 2, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2. ऑक्सीडेशन of SO2 in presence of catalyst NO गैस, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस. तो ये आएगा किस में आएगा भाई, होमोजीनियस कैटलिस्ट में आएगा. SO2 and O2 you know in presence of NO and SO3 is formed, so its phase is gas. This one also gas, this one also gas. So here homogeneous catalyst, homogeneous catalyst, right friend. तो हम समझते हैं आपको ये बात समझ आ गई होगी. And next one is, our next point is promoter and poison. So promoter means to promote, to increase.
तो प्रोमोटर्स द सब्सटेंस दैट increases the activity of a catalyst is called promoters। ठीक है दोस्तों, वैसा सब्सटेंस जो एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, राइट। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था कि इन हेवर प्रोसेस N2+3H2 2NH3 here Fe is catalyst and molybdenum is also used. It acts as promoter. Molybdenum increases the activity of catalyst iron Fe। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पे एक चीज़ और सीखते हैं, इट्स अ पॉइजन्स मीन्स वही जहर होता है। तो जहर कैटलिस्ट के लिए क्या होएगा कि द सब्सटेंस दैट डिक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। देखो फ्रेंड्स, हेवर प्रोसेस में क्या होता है कि ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म इन द मैन्युफैक्चर ऑफ NH3 CO and CO decreases the activity of catalyst Fe, so it is necessary to remove CO in Haber process। क्यों भाई? Because it acts as poison। ठीक है दोस्तों, पॉइजन का मतलब वही होता है सब्सटेंस जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक इज एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, कि बच्चों इसमें किस तरह से कैटलिस्ट काम करता है, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट काम करता है, ये हमें थोड़ा देखना है। तो इसमें सम स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दैट। फर्स्ट वन इज डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट। तो कहाँ डिफ्यूज करेगा? ऑन कैटलिस्ट सरफेस, सभी कैटलिस्ट सरफेस पे ही होगा। डिफ्यूजन मीन्स टू डिफ्यूज, कैसे गैस को छोड़ते हो, तो दिस इज डिफ्यूजन। तो रिएक्टेंट को हम कहाँ डिफ्यूज करेंगे भाई? कैटलिस्ट सरफेस पे। तो वहाँ क्या होता है कि एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस टेक्स प्लेस ऑन catalyst surface। So second step is adsorption of reactant। कहाँ होगा भाई? ओवर कैटलिस्ट सरफेस। उसके बाद केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा। ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज फॉर्म ऑन कैटलिस्ट सरफेस। अब इंटरमीडिएट बन गया, उसके बाद क्या होएगा भाई? डिजॉर्प्शन होगा। डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम कैटलिस्ट सरफेस। सो ये थोड़ा स्टेप याद रखना है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। और इसको हम डायग्राम से दिखाते हैं। देखो फ्रेंड्स, ए और बी दो रिएक्टेंट है, ए और बी दोनों कंबाइन हो रहे हैं टू फॉर्म प्रोडक्ट ए बी। सो दिस इज रिएक्टेंट एंड दिस इज योर प्रोडक्ट।
राइट। इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट का सरफेस दिखाया गया है। सरफेस का कैटलिस्ट जितना ज़्यादा होगा एडजॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होएगा, चूँकि एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एज यू हैव सीन इन प्रीवियस वीडियो, राइट। अब यहाँ देखो कैटलिस्ट का सरफेस मैंने बनाया है और ये रिएक्टेंट है, तो ये रिएक्टेंट का क्या होएगा भाई, फर्स्ट स्टेप इज रिएक्टेंट, इसमें डिफ्यूज करना है, मीन्स डिफ्यूजन, ऐसा डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन मैंने दिखाया नहीं है। अब डिफ्यूजन के बाद क्या होगा, एडजॉर्प्शन इज देयर, मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन रिएक्टेंट विथ कैटलिस्ट। अब यहाँ क्या हो गया, ये एडजॉर्प्शन हो गया, इट्स एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के बाद में क्या होएगा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है यहाँ ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। अब इंटरमीडिएट बन गया, ये भी कंपाउंड इज फॉर्म, दैट मीन्स प्रोडक्ट इज फॉर्म, तो यहाँ से डिजॉर्प्शन होना जरूरी है। सो आफ्टर दैट डिजॉर्प्शन टेक्स प्लेस एंड प्रोडक्ट ए बी इज फॉर्म। सो दिस इज योर एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, में ऐसा ही होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फ्रेंड्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द enzyme catalyst and its characteristic of enzyme catalyst and its mechanism and catalyst in industry. So friends, हम समझते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बहुत मन लगा कर पढ़ें। हमारी शुभकामना, आप बहुत पढ़ें, आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।